بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری نعت کو دورے پڑتے تھے۔ اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ایسی حالت میں اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ میری ساس بھی اس کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اور پھر میری ساس ایک عامل کو بلا لیتی تھی، جو گھر میں آتے ہی میری نعت کو لے کر کمرے میں چلا جاتا اور کہتا کہ میں اس کا جن اتارنے لگا ہوں، اس لیے اندر مت آنا، کیونکہ کوئی بھی اندر آیا تو جن اسے چمٹ جائے گا۔ یہ سن کر کوئی بھی اندر جانے کی ہمت نہ کرتا، اور یوں کچھ دیر بعد وہ عامل باہر نکل آتا اور میری نعت بھی ایسے نکلتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد اس پر دورہ پڑا تو میں نے سوچ لیا کہ جب میں دونوں اندر جائیں گے تو میں دیکھتا کہ آدمی اندر ایسا کیا کرتا تھا۔ میری نعت اس وقت ٹھیک ہو جاتی تھی، اور پھر جب میں نے اپنی نعت کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ عامل تو میری نعت کے ساتھ میرا نام مدیحہ ہے اور ایک ہفتہ پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر اور 2 دیور اور ایک چھوٹی نعت رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک دفتر میں کام کرتا تھا، جبکہ سسر دکان چلاتا تھا۔ جبکہ میرے دونوں دیور سکول جاتے تھے۔ میری ساس میٹرک پاس تھی، اس لیے وہ ہیلتھ ورکر تھی اور سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ گھر میں صرف میری ایک نند ہوتی تھی، جس نے میٹرک کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور اب سارا دن گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میری ساس کے مقابلے میں سسر بڑے سمجھدار تھے۔ میری ساس پیسے کے پیچھے بھاگتی تھی اور اس چکر میں اس نے اپنے بچوں اور گھر کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے میرے سسر نے اپنے بیٹے کی جلدی شادی کر دی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سب کے چلے جانے کے بعد اس کی بیٹی گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ سسرال آ کر میں نے دیکھا کہ گھر میں 3 کمانے والے تھے، مگر پھر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا۔ گھر کا سارا نظام الٹ پلٹ تھا۔ میری ساس صبح سویرے ڈیوٹی پر چلی جاتی اور پیچھے گھر کی کوئی خیر خبر نہیں، کیونکہ وہ 2 بجے کے قریب ہی گھر آتی تھی۔ ایسے میں میری نند اور میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خیر، یہ دیکھ کر میں نے گھر کو سنبھال لیا، مگر شادی کے چند دن بعد ہی مجھ پر ایک اور مصیبت آن پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میری نعت کو دورے پڑے تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا اور میرا شوہر ناشتہ کر کے گھر سے نکلا ہی تھا کہ میری نعت کی طبیعت خراب ہو گئی اور سسر دکان پر تھا اور چھوٹے دیور باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں میری ساس اور نعت کے سوا گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی میری نعت گر پڑی اور اس کی طبیعت بگڑتی گئی اور اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس وقت مشین لگائی ہوئی تھی اور میں اوپر چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی، جب میں نے اپنی نعت کی چیخوں کی آواز سنی اور میں بڑی تیزی سے نیچے آئی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اپنے ساس سے پوچھا، یہ سعدیہ کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر میری ساس، کیا بتاؤں بہو، 2 مہینے پہلے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور میں اسے اس کی ایک دوست کے کہنے پر اسے ایک عامل کے پاس لے گئی اور اسے دم کرایا۔ کچھ دن تو یہ بالکل ٹھیک رہی، مگر پھر اس کو دورے پڑنے لگے اور اس سے
इस बेचारी की हालत ऐसी हो जाती। सुन रखा, बहुत दुख हुआ। यूँ मेरी नंद बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे याद आया कि मेरी खाला पर भी ऐसे ही एक जिन आता था और उस बेचारी की भी ऐसी हालत हो जाती थी, और इसी वजह से इस बेचारी की मौत हो गई, क्योंकि इससे जिस आमिल के पास ले गए, इन्होंने कहा। यूँ मेरी खाला 10 साल तक ऐसी हालत में रही और फिर आखिर वो बेचारी मर गई। मेरी खाला भी मेरी नंद की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं सोचने लगी कि जिन ऐसी ही प्यारी लड़कियों पर आशिक हो जाते थे, ऐसी हालत में अपनी नंद को देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं आगे बढ़ी ताकि मैं इसे उठाकर अंदर ले जाऊं, मगर मेरी सास ने मुझे आगे जाने से रोक दिया और कहने लगी, नहीं तुम इसके करीब मत जाना। मैंने इस आमिल को कॉल कर दी है, जैसे यह ठीक हो जाती है। ये सुनकर मैं पीछे हट गई। शायद ऐसी हालत में इसके करीब कोई नहीं जाता था, हत्ता कि मेरी सास भी इसके पास नहीं गई। और थोड़ी देर बाद वो आमिल आ गया। मैं तो इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो अच्छा खासा जवान खूबसूरत मर्द था। हालांकि मैंने सोचा था कि वो कोई बुजुर्ग होगा। ये देखकर मैंने अपनी सास से कहा कि हमें घर में किसी मर्द को बुला लेना चाहिए था, मगर मेरी सास कहने लगी कि फिक्र की कोई बात नहीं, ये अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने देखा कि वो आमिल मेरी नंद को लेकर कमरे में चला गया और कहने लगा, मैं इसका जिन उतारने लगा हूँ। ये अमल बहुत सख्त होगा, इसलिए अंदर मत आना, क्योंकि कोई भी अंदर आया तो जिन इसको चिमट जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान परेशान इन दोनों को अंदर जाता देखती रही। मुझे लगा था कि मेरी सास अपनी बेटी के साथ कमरे में जाएगी और किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगी, मगर वो तो डर के मारे कमरे के पास भी नहीं भटकी और अपनी जवान बेटी को एक मर्द के साथ अंदर जाने दिया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा दिल कह रहा कि अपने ससुर या शोहर को कॉल करके घर बुला लूं, मगर फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास खफा ना हो जाए। वैसे भी मेरी नई शादी हुई थी, ऐसा ना हो कि मैं नंद के साथ भला करूं और ये नेकी मेरे गले पड़ जाए। इसलिए मैं खामोश होकर ये सब देखती रही। मैं सोचने लगी कि मेरी खाला पर भी तो जिन आता था और इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि इन आमलों ने मेरी खाला को तन्हाई में ले जाकर कोई अमल किया हो। ये तो बड़ा अजीब अमल था। हम दोनों के सामने एक लड़की को कमरे में लेकर चला गया और अब 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे और वो अभी तक कमरे से नहीं निकला था। ये देखकर मेरी परेशानी बढ़ गई, मगर कुछ देर बाद वो आमिल निकल आया और मेरी सास को कुछ तवीज़ देकर चला गया और मेरी नंद भी कमरे से ऐसे निकल आई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर कई दिनों तक मेरी नंद हंसती मुस्कुराती रही और मुझे ऐसा लगा कि इस पर तो कुछ था ही नहीं। हालांकि मेरी खाला तो अमल कराने के कई दिन बाद तक बिस्तर पर बेहोश पड़ी रहती थी और इसे तो खाने पीने तक का होश न रहता था, मगर मेरी नंद तो फौरन चहकने लगती थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मुझे शक हुआ कि ये कोई और बात है। इसलिए मैंने सोच लिया कि जब भी मेरी नंद पर जिन आएगा मैं इसकी असल हकीकत जान लूँगी। फिर 2-3 हफ्ते बाद मेरी नंद को दौरा पड़ा तो मेरी सास घर पर नहीं थी, मैं अकेली ही थी। इसलिए जब मेरी नंद अपने कमरे में पड़ी चिल्ला रही थी, मैंने कॉल करके अपनी सास को बुलाया। इसने कहा कि मैंने अपने अमल को कॉल कर दी है, जब तक वो घर आएगा मैं भी घर आ जाऊंगी। ये सुनकर मैं जल्दी से अपनी नंद के पास आई और इसे उठाकर बिस्तर
उठाना चाहा, वो चिल्लाने लगी और खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं जान गई थी कि इस बार कोई जिन नहीं आया था, क्योंकि जब मेरी खाला पर जिन आता था वो अपने पास आने वाले को ऐसी कुव्वत से धक्का मारती थी कि अंधा के मारे कोई इसके पास भी नहीं भटकता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरी नंद ऐसा कुछ नहीं कर पाई। खैर, मैंने इसे बामुश्किल उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और इसके कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल आई। कुछ देर बाद वो आमिल आ गया। मेरी नंद इस कमरे तक बहुत चला रही थी, इसलिए वो सीधा कमरे में चला गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। मैं कुछ देर बाद बाहर खड़ी रही और फिर मैंने जल्दी से अपनी नंद के कमरे की इस खिड़की की तरफ आई, जिसे मैं थोड़ा सा खोल दिया था। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अंदर का मंजर देख लूं, इससे पहले कि मेरी सास घर आ जाए। इसलिए मैंने खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि मैं देख सकूं कि ये आदमी अंदर ऐसा करता है क्या है कि मेरी नंद इसी वक्त ठीक हो जाती थी, क्योंकि हम ने तो अपनी खाला के लिए बहुत कोशिशें की थी, मगर हम इससे बचा नहीं पाए। जबकि मेरी नंद तो इतनी जल्दी ठीक हो जाती थी। और फिर जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का हो गई, क्योंकि वो आमिल तो मेरी नंद के बिस्तर पर इसके साथ बैठा देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कौन सा आमिल था और कौन सा आमिल इस तरीके से जिन भगा देता था? ये तो बेहयाई थी और मेरी नंद ऐसा करके हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं एक बार अपनी नंद से ज़रूर बात करूंगी और इसे समझाऊंगी कि ये सब ठीक बात नहीं कर रही थी। इसलिए अगले दिन जब इसकी तबीयत ठीक थी तो मैं इसे लेकर छत पर ले गई। इससे कहा कि मैंने कल इसे आमिल के साथ कमरे में देख लिया था। ये सुनकर वो हैरान रह गई और शर्मिंदगी के मारे उठकर नीचे जाने लगी। मैंने इसे पकड़कर वापस बिठा लिया और समझाया, वरना मैं भी इस चीज़ को देखा ना करती, मगर तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि वो आमिल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। ये सुनकर वो रोने लगी और थोड़ी देर बाद मुझसे कहने लगी, भाभी, वो आमिल मेरी दोस्त का भाई है और मैंने पहली बार इसे अपनी दोस्त के घर देखा था। वो मुझे अच्छा लगा और इसने अपनी बहन से कहा कि मैं भी इसे अच्छी लगती हूँ, इसलिए हम दोनों मिलने लगे, मगर हम यूं ही आज़ादी से नहीं मिल सकते थे। इसलिए इसने कहा कि मैं एक आमिल हूँ और ये काम करता हूँ, इसलिए तुम ये ज़ाहिर करो कि तुम पर जिन्न आता है। इस बहाने से मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता रहूँगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी नंद ने मेरी सास के होते हुए इतना बड़ा काम कर लिया और मेरी सास को पता तक नहीं चला। इसलिए मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम मुझे इसका मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हारे सामने इससे पूछती हूँ कि क्या तुम से शादी करेगा या नहीं। बेवकूफ़ बना रहा था। ये सुनकर वो नीचे गई और अपना मोबाइल लेकर आई और कहा, हम इसके ज़रिए बात करते हैं। ये सुनकर मैं पछताऊंगी, ये तो बात तो मुश्किल आगे निकल गई, मगर जब मैंने इस आमिल से बात करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ जान गई हूँ, वो साफ कहने लगा मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सब बातें मेरी नंद सुन रही थी। फिर जब आमिल ने कहा कि मैं तो इससे शादी नहीं करना चाहता और मुझे समझाने के बजाय अपनी नंद को समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे। जब मैंने इसकी बात सुनी तो मैंने इससे कहा कि आइंदा हमारे घर ना आना, वरना मैं ये सारी बातें अपने शौहर को बता दूंगी। और ये धमकी देने के बाद मैंने कॉल काट दी
अब मेरी नंद भी ये शामिल की हकीकत जान गई थी, इसलिए इसने भी वादा किया कि अब दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। ये सुनकर मैंने सोचा कि अपने शौहर और सर को इसकी शादी की बात करूँगी ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बाज़ घरों में मानव के लापरवाही से ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं कि जिनका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर वालिदैन तवज्जो ना दें तो अक्सर बेटियां कोई ना कोई गलत काम खुद भी कर लेती हैं, बल्कि वालिदैन की इज़्ज़त को भी दांव पर लगा देती हैं। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।